Okay. Accounting 7707 is basically the code for O levels accounting regarding your Cambridge exams. Paper 1 will consist of 1 hour 15 minutes. 35 MCQs will be there and 30% is the weightage. Paper 2 is of 100 marks. Time allowed is 1 hour and 45 minutes. 5 questions of 20 marks each you have to attempt. There is no choice in your paper 1 or paper 2. You have to appear in both papers without any choice. So 20 marks multiplied by 500 marks paper is there, and out of which from 5 marks will always carry from the theoretical portion. Though accounting is a numerical subject, but some part of the theory will also come in the paper. So out of 35 in paper 1, you need around 21 to get an A and 18 marks to get a B. Only 21. And in paper 2, you need to get how many marks? Can you give me any idea? Out of 100 marks, how many marks you need to get an A? Just throw an idea. 60 something, 70. Only 51 marks you need. Some grade threshold goes to 47 even. Now, what is the reason that the grade threshold is on the lower side? There is no A-star grade. Always remember that in your Cambridge exams, either for business, for economics, for accounting, for English, for Urdu, for every subject, there is no A-star. A-star is the difference between A and B. The difference of A and B will be added in A grade to get an A-star. So A-star itself is not a grade. It is a combination. It is the difference between A and B, which is added in A grade to find the numbers of A-star. What is the reason that the grade threshold for paper 2 is on the lower side? Very much lower side, especially in accounting. Reason being that the IGCSE paper code is 0452. There is a Cambridge board in England, which is known as IGCSE also. This is O levels, accounting 7707. And for IGCSE, the code is 0452. So from 2020 onwards, what happened, Amal? That the paper pattern has been changed and IGCSE paper 2 has been transferred to O levels. And paper 1 of accounting O levels has been transferred to IGCSE. It means that from 2020 onwards, both students, either they belong to O level accounting or they belong to IGCSE accounting, they will appear in the same paper. Yani you are going to have the same paper on the same day. Either you are doing IGCSE O level accounting or you are doing IGCSE accounting or you are doing O level accounting 7707, you are going to appear in the same paper. And that is why the paper pattern has also been changed. And most of the questions from IGCSE paper 2 has been converted to paper 2 O levels. So paper 2 will come in the exams more often out of IGCSE syllabus or IGCSE pattern. And paper 1 of MCQs has moved from O levels to IGCSE. यानी कि दोनों को मर्ज करके पेपर 1 उन्होंने उठा लिया O levels का और पेपर 2 उन्होंने उठा लिया है पैटर्न किसका, IGCSE का. अब O levels के बच्चे, पाकिस्तान में ज्यादातर O levels होता है, तो O levels के बच्चे नॉर्मली O levels के पास पेपर में से तैयारी करते हैं और IGCSE के पास पेपर में से प्रिपरेशन नहीं करते. उसका रिजल्ट क्या होता है कि आपके मार्क्स कम आते हैं क्योंकि आपने तो O levels के पास पेपर किए, जबकि 2020 के बाद तो पास पेपर IGCSE के पेपर में से पेपर 2 बनता आ रहा है. तो रिलेटिव ग्रेडिंग ऑटोमेटिकली कम होती जा रही है. ऑल ओवर द वर्ल्ड O level ज्यादा होता है या IGCSE? जनरली आपको पता है कि O level ज्यादा होता है. इसका मतलब है कि O level ज्यादा होता है, O levels के बच्चों को प्रॉब्लम आएगी पेपर 2 में. प्रॉब्लम आएगी तो रिलेटिव ग्रेडिंग या ग्रेड थ्रेशोल्ड ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा. मेरी बात समझ आई आपको या दोबारा बताऊं? यस सर, समझ आ गई. हाँ जी, तो ये बात आपको जो मैंने बताई है बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोई बताएगा ही नहीं आपको, क्योंकि बिल्कुल एक डिफरेंट सिर्फ वही टीचर बता सकता है जो कि 15-20 साल से इस स्ट्रीम लाइन को प्रॉपर्ली पढ़ा रहा हो. इसी तरह आपने कभी O levels में गैस का भी नहीं सुना होगा, मैं आपको गैस भी दूंगा, वो गैस पेपर में आएगा भी, जबकि आपको कैम्ब्रिज में कभी गैस के बारे में सुना ही नहीं होगा कि गैस भी कोई देते होते हैं, लेकिन इसमें भी गैस होता है और इंशाल्लाह ताला आई विल प्रोवाइड इट टू यू
and you will be able to handle the paper in the best possible way. मैंने आपसे ये पूछना था कि आपने, हम शायद आपके फादर को पता होगा, लेकिन मैं आपसे फिर पूछना चाह रहा हूँ कि फीस आपने कितनी सबमिट करवाई है फी अकाउंटिंग मेरा की? ख्याल है अकाउंटिंग की 10,500। 10,500 आपने सबमिट करवाई है। जी ठीक है, ठीक है। इसमें रजिस्ट्रेशन भी होगी, सारी बात है। जी रजिस्ट्रेशन भी होगी ना इसमें? जी रजिस्ट्रेशन इंक्लूडेड। इंक्लूडेड है, हाँ जी। अगली दफा तो कम करवाओगी ना ऑब्वियसली। जी अगली दफा 75 आई थिंक है। हाँ ठीक है, ठीक हो गया जी। तो अब हम देखते हैं जी कि हम कैसे जो है वो इसको सॉल्व करेंगे, या कैसे इस चीज को हम जो है वो टेकअप करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है जी कि हमारी काउंटिंग, अब ये तो मैंने पेपर पैटर्न के बारे में आपको बता दिया। अब अकाउंटिंग के बारे में हम बात करते हैं कि काउंटिंग हमारी होती क्या है। नंबर 1 चीज जो हम लिखेंगे वो क्या है जी, द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। The language of business is called accounting. We can talk in Urdu, we can talk in English, we can talk in Punjabi. कोई Yes, sorry. मैंने कहा जैसे सही है। कोई मसला नहीं। जी नहीं नहीं, ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बेवकूफ। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं रहा। Oh, sorry. It's a part of the, Okay. it's a part of the, lecture. Acha, we can talk in Urdu, we can talk, Okay. we can talk in even in some other language also, but whenever we are going to talk in business, the language which we use, that is called accounting. Business में क्या होता है? Business में होती है transaction, और transaction क्या होती है अमल बेटा? Transaction होती है any monetary dealing between two people is called transaction. इसके बारे में शायद आपको पहले सुना होगा आपने। Any monetary dealing between two people is called transaction. Any monetary dealing between two people is called transaction. यानी कि if I am going to give anything as a gift to anyone else, it is not a transaction. There has to be some monetary involvement in that. So money value has to be a part of it. Any monetary dealing between two people is called transaction. कोई भी दो बंदों के दरमियान पैसों का जो लेन देन होता है उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। मॉनेटरी डीलिंग होना जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल बिजनेस का वर्ड आपने सुना होगा। बिजनेस का वर्ड निकला है अमल बिजीनेस से। बिजी, that you are busy in doing something, ness yani you are busy in doing something. So business means, business is a human activity in order to satisfy human need and wants by producing goods and services, by combining the factors of production in order to earn profit. There can be loss also, but the purpose behind the scene is to earn profit. So what is the definition of business? Business is a human activity. Human involvement has to be there in order to satisfy human need and wants. Need and wants में फर्क होता है, आपको पता है। Need is essential for life, want is not essential for life. Need survival के लिए जरूरी है, want survival के लिए जरूरी नहीं है। Need is almost same for all, but wants are different for every person. Need जो है they are limited, wants are unlimited. ठीक है जी, ये differences हैं। Needs gives you satisfaction, wants gives you pleasure. मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ जी मैंने कोक ही पीनी है, मैंने पेप्सी पीनी है, तो वो वॉट में आ जाएगा सारी बात। तो एनी ह्यूमन एक्टिविटी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड एंड वांट्स बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू एज ए टीचर, बाय कंबाइनिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को कंबाइन करके जो हम चीजें गुड्स प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस में क्या होती है? ट्रांजैक्शन। एनी मॉनेटरी डीलिंग बिटवीन टू पीपल इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं हम? द लैंग्वेज इन विच दैट ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अगर मैं लिखूं अमल मशीनरी परचेज फॉर कैश, वो तो इंग्लिश है। अगर मैं लिखूं मशीनरी खरीदी, वो तो उर्दू है। किस लैंग्वेज में मैं रिकॉर्ड करूंगा बिजनेस की ट्रांजैक्शन को कि मशीनरी परचेज की है मैंने, वो कहलाती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अल्फाबेट्स हैं,
और अकाउंटिंग के अल्फाबेट्स क्या लाते हैं आपको पता है पहले से ही, डेबिट एंड क्रेडिट। क्या मुझे आप बता सकती हो कि डेबिट स्टैंड फॉर डी आर, तो डी आर क्यों कहते हैं इसको हम? डी आर स्टैंड फॉर DR stand for debit record and CR stand for credit record, right? DR stand for debit record and CR stand for credit record. And if I am going to combine the atoms of hydrogen H2O, तो आपको ये पता है कि it is always comes to water. There is a rules of chemistry. अच्छा, मुझे आप ये बता सकती हो कि ये A, B and C, they are the alphabets of English. So can you define A, B and C? Can you define A, B and C? The basic of language. Definitely, they are the alphabets of English language. There is no definition. जी Definition यही है कि वो alphabets हैं, आप इसको define नहीं कर सकते. जी, अलिफ बे पे इंग्लिश की लैंग्वेज है, राइट? दे आर द अल्फाबेट्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज. देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ दिस. अगर मैं आपसे कहता हूं कि प्लस को मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ, तो आपको जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? प्लस में ही आएगा, है ना? अगर Yes. मैं कहूं कि माइनस मल्टीप्लाई करें, माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ, तो आपका आंसर किस में आएगा बताएं? माइनस और प्लस में. प्लस में आ जाएगा. अब मेरा क्वेश्चन है आपसे अमल, वेरी गुड, अगर प्लस 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 है तो माइनस 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 नहीं होना चाहिए. व्हाई इट इज प्लस? क्या आपने कहा? माइनस प्लस 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 है तो माइनस 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 होना चाहिए. प्लस कैसे हो गया? सर पता जी, no definition. no definition. There are alphabets of this. These are the alphabets of language of mathematics, and these are the rules of maths which you are following from your childhood. बचपन से सीख रहे हैं, इसलिए आपको लगता नहीं कि ये अजीब है अजीब. Don't ask this question to your math teacher, otherwise he will kick you out of the class. If you ask this question, although it's a logical question, that plus plus is plus, minus minus is also plus. Why not minus minus is minus? Because these are the rules of mathematics and you have to follow the same rules as it is. Same is the case with accounting. Accounting has its certain rules and those rules are called debit and credit. And they are the alphabets of the language of accounting. That's why language of business is called accounting. They are the basic definition of accounting. जी, यहाँ तो कोई मसला तो बताएं. No. समझ आ गई है? ओके. ये आपने लिख लिया है, पेपर पैटर्न वगैरह लिख लिया आपने? जी ठीक है, ये जरूरी है ना, पेपर पैटर्न तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम जो है वो चीजों को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं. तो ये बुक है साहिवाल में. आपके यहाँ पे लाहौर में लोग रहते हैं, आप लाहौर आती हो, कभी विजिट करती हो या पीपल यूज टू विजिट? जी 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 मतलब कर विजिट लाइक रेगुलरली करते रहते हैं. बस ठीक है, तो मेरे घर से आपको बुक लेनी पड़ेगी ओ लेवल्स की अकाउंटिंग की. ठीक है, बुक आपको परचेज करनी पड़ेगी, कॉस्ट यू 2500. ये मेरी बुक है ओ लेवल्स की अकाउंटिंग की. इट इंक्लूड्स ऑल द पास्ट पेपर्स. चैप्टर्स आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको. It includes all the past papers, all the definitions, formats, right? All variants. ठीक है जी. तो ये स्पेसिफिक पेपर आपको दिखाने जा रहा हूं मैं कि स्पेसिफिक पेपर क्या आया हुआ था जो 2020 के बाद आया. पहला सवाल कैश बुक का आपके सामने, आप देख रही हो. जी टोटल मार्क्स कितने हैं पहले क्वेश्चन के अगर हम देखें तो हम देखते हैं कितने मार्क्स हैं आपके. 20 मार्क्स. ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन है. इसके भी मार्क्स अगर हम देखें, टोटल मार्क्स कितने बनते हैं जी? अगेन दे आर गोइंग टू बी अगेन 20 मार्क्स. तो 2 क्वेश्चंस हो गए हैं 20-20 मार्क्स के. स्पेसिफिक पेपर आपका ये, एंड इट इज द सेट पैटर्न standard paper which is going to come in your upcoming exams from 2020 onwards. फिर ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका टी अकाउंट्स का है और इसके भी आपके 20 मार्क्स हैं. फिर चौथा क्वेश्चन है आपका एरर्स का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है और उसके भी आपके 20 मार्क्स का
क्वेश्चन है। और पांचवा क्वेश्चन आपका कंपनी अकाउंट्स का और रेशियोज में से आया है, इसके भी आपके 20 मार्क्स हैं। तो दिस हाउ 5 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स ईच बिकम्स 100 मार्क्स। आगे उसका आंसर दिया हुआ है, इस बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड फॉर द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चैप्टर के हवाले से हम बात करेंगे। चैप्टर 1 है अकाउंटिंग क्वेश्चन एंड द बैलेंस शीट। सबसे पहले इसमें क्या होता है, द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड अकाउंटिंग और अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ समराइजिंग, क्लासिफाइंग एंड इंटरप्रेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो क्या करें, हम इसकी पिक्चर ले लें बेटा पहले तो। ओके इस पेज की पिक्चर ले लें आप। बुक तो ऑब्वियसली यू हैव टू परचेज द बुक व्हेनेवर समबडी इज गोइंग टू विजिट लाहौर, he can come to my place. It is in Wabra town, right? And he can pay 2500. 74D3 Wabra town is the address. I will guide you accordingly, whoever is going to come, so that I can give you the book. okay We are going to study from Frankfurt also. Do you have the book Frankfurt? yes sir We are going to study from that also. But my book is also important because it carries all the things, all the paper pattern and other matters. So accounting पढ़ लिया। Capital क्या होता है जी? Amount invested by the owner of the business is called capital. So we are moving forward now to our next part. The whole accounting is based upon this equation, which is known as accounting equation. ठीक है जी। अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होती है, अमल बताइएगा जरा मुझे। अमल कह रहा हूँ, सॉरी, अमल ही नाम है। जी ओके ओके सॉरी। liabilities is equals to हाँ assets capital is equals to assets plus liabilities जी। अब इसकी क्वेश्चन क्या होती है बताइए आपने, ठीक है। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है जी। एसेट्स क्या होते हैं जी आपके, रिसोर्सेज। बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स which are always equal to sources. Assets equal to capital plus liabilities. So can you please tell me that why this equation is equal? Why assets are equal to capital plus liabilities? because लिखते हैं हम इसको। Assets are those things which are used used in the business to run the business. The sources of business are called assets. Let's suppose we want to open a farmhouse in Sahiwal along with you. I'm going to open a farmhouse with you, poultry farm along with you. So we need some resources. We need land, building, machinery, motor vehicle, furniture, equipment. We all need these resources to run the business. But how I'm going to get these resources? I need some source. मुझे उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। That source will come from either from the owner's own pocket, yani we both have to contribute capital into the business. So amount invested by the owner of the business is called capital. और जब हमारे पास वो सरमाया, यानी कि हम अपने कैपिटल से अमल परचेज करेंगे, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, हम परचेज करेंगे अपने सरमाया लगा के, विच इज कॉल्ड कैपिटल, और हम एसेट्स परचेज करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो कम पड़ जाते हैं, कैपिटल हमारा कम पड़ जाता है। तो मैं आपके फादर से कहूंगा, ही इज अ वेरी रिच मैन। आई आस्क हिम दैट ओके गिव अस सम लोन। सो द लोन व्हिच इज टेकन फ्रॉम योर फादर, दैट नीड्स टू बी रीपेड बैक टू हिम, एंड दे बेसिकली बिकम आवर लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज क्या होती हैं, एनीथिंग व्हिच इज पेएबल इज अ लायबिलिटी। सो दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन विल ऑलवेज बी इक्वल, कि एसेट्स हमारे क्या होते हैं, resources of business are called assets. जी, और liabilities क्या होती हैं, anything which is payable, anything which is payable is a liability. Can you tell me the difference between paid and payable?
जी, यस जी. can you please tell me the difference between paid and payable? पेबल. पेड और पेबल में क्या फर्क है? पेड और पेबल में क्या फर्क है? ट्रेड और पेबल में. जी, ट्रेड होता है जैसे आप लाइक नहीं यू दोबारा सुनो, गलत अमल ठहरो। मैं कह रहा हूँ पेड और पेबल में क्या फर्क है? PAID, पेड. पेबल। ओके, पेड और पेबल में. जी पेड लाइक व्हेन यू बाय द थिंग यू ऑलरेडी पे जी the बिल्कुल। money or whatever, हाँ and जी payable is that it is you paid afterwards. जी बिल्कुल सही है। पेड का मतलब है आपने अदा कर दी है, और पेबल का मतलब है अदा करना है। तो एनीथिंग विच इज पेड इज लायबिलिटी। आप समझ आ रही है ना? एनीथिंग विच इज पेड जी सर. लायबिलिटी। कोई भी चीज जो पेबल है वो लायबिलिटी कहलाती है आपकी। और अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कैपिटल। क्या होगा अमल? वो पैसा जो मैं बिजनेस में लगाऊंगा, यानी कि वो पैसा जो मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, On owner's equity. जी। तो देखें, एसेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड ओनर्स इक्विटी, यू आर राइट। एंड बिकॉज एसेट्स बराबर है कैपिटल एंड लायबिलिटीज के, तो हम क्या करते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स। फॉर एग्जांपल मशीनरी, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, लैंड, फर्नीचर, ये सब चीजें हमें चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए। लेकिन ये सब मैं बिजनेस से, ये सब चीजें मैं कैसे परचेज करूंगा? उसके लिए मुझे क्या चाहिए अमल? मुझे पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? either from the owner's own pocket, which is called capital. So amount invested by the owner of the business is called capital. और अगर वो पैसा वेपा खत्म हो जाएगा तो मुझे किसी से लेके लगाना पड़ेगा। वो पैसा जो मैं किसी से लेके लगाऊंगा, that is called liability. ठीक है? तो anything which is payable is liability. और इस तरह से क्वेश्चन ये बनी है कि resources are always equal to sources. अकाउंटिंग जो है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अकाउंटिंग का है वो कहलाता है आपका ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जी समझ आ गई ऊपर वाले बात की? रिसोर्सेज बराबर है, जी सर. पता चल गए? जी यस सर. जी ठीक है। आगे ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, one on the debit side and one on the credit side. अकाउंटिंग में हर चीज के दो पहलू हैं, एक डेबिट पे और एक क्रेडिट पे। If I will give you a slap on your face, yani every action has reaction. You can't react in the same manner because I am your teacher, obviously. But accounting mein every action has reaction, which is opposite to each other, but in equal force. Which is opposite to each other, but in equal force. Force equal है लेकिन एक दूसरे के उलट है. That is called dual aspect concept. Every transaction has two aspects, one on the debit side and one on the credit side. उसे कहते हैं हम dual aspect concept. अब dual aspect concept के बाद हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है जी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? एनी आइडिया? नहीं पता तो कोई बात नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ। सर आप बता दें. जी बिल्कुल। अच्छा देखें, ये अभी तक यहाँ तक जो मैंने बताया इसमें कोई मसला है तो बताएं मुझे, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। नो सर. ओके, देखिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है अमल की बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन अदर देन द ओनर। ये लिखा है, बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन अदर देन द ओनर। बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर, and in accounting we are not owner, we are business. So amount invested by the owner of the business is called capital, and capital is the liability of the business because business is supposed to pay back that amount at some stage with profit to the owner, maybe at the end of the business, लेकिन वापस करना पड़ेगा। यानी कि अकाउंटिंग में
हम कौन है? हम बिजनेस हैं, वी आर बिजनेस। ये कौन है जी? ओनर। ये कौन है जी? बिजनेस। ओनर बिजनेस में क्या लगाता है जी? कैपिटल। ओनर बिजनेस में क्या लगाता है जी? कैपिटल। उसको रिटर्न में क्या चाहिए अमन? उसको रिटर्न में चाहिए वापस, उसको रिटर्न में कैपिटल, अपना पैसा जो है वो भी वापस चाहिए, along with profit or loss, because there can be profit, there can be loss also, along with profit और loss दोनों हो सकते हैं इसमें। और अकाउंटिंग में हम कौन है? अकाउंटिंग में हम वी आर बिजनेस, नॉट द ओनर। अकाउंटिंग में हम जब पढ़ते हैं अकाउंटिंग को, हम ये सपोज करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, वी आर बिजनेस नॉट द ओनर। हम ओनर नहीं, हम बिजनेस है। हमने जब भी कोई चीज सोचनी है या कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करनी। इस लिहाज से बिजनेस की जिम्मेदारी है कि उसने कारोबार के मालिक से जो पैसा लिया है वो पैसा एक ना एक दिन वापस करना है उसने, कारोबार के मालिक को। एक तरह से कैपिटल भी बिजनेस की लायबिलिटी ही होती है, क्योंकि ये सरमाया कारोबार के मालिक को वापस करना पड़ेगा एक ना एक दिन बिजनेस को, चाहे वो बिजनेस का आखिरी ही दिन क्यों ना हो। सर वो कैसे? देखते हैं। अमल, मैंने और आपने पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट की, दैट इज वी आर द ओनर्स एंड वी हैव पुट इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस व्हिच इज कॉल्ड कैपिटल। किसी वजह से हमारा पोल्ट्री फार्म नहीं चल सका, मुर्गियां सारी मर गई। अब हम क्या करेंगे? पोल्ट्री कोल्ड कंट्रोल शेड जो हमारा होगा उसको सेल करेंगे। सेल करके हम अपने पैसे सारे रिकवर करेंगे। हो सकता है बिजनेस सारे पैसे पे बैक ना कर सके, लेकिन बिजनेस को वापस करने पड़ेंगे। सो कैपिटल is an internal liability of the business, और अकाउंटिंग में we are business not the owner, so we basically think from the point of view of the business every time। तो हम बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, हम ओनर के बारे में नहीं पढ़ते। ओके? ओके, नहीं समझ आई? नहीं समझ आ रही है। ठीक है जी। अब ये पेज मैंने आपको लिख के दिया था, ये पेज आपने पढ़ना है अच्छे तरीके से, और इस पेज को आपने समझना भी है, और इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। जी, तो अगर आप देखें इसके अंदर, इसे कहते हैं अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कैन यू प्लीज टेल मी हु इज द पर्सन हु इज लुकिंग एट यू फ्रॉम बिहाइंड द वॉल? बिजनेस। बिजनेस नहीं, ओनर। हम कौन है? नहीं, हम बिजनेस। हम बिजनेस, हाँ अच्छा, हम बिजनेस हाँ, हैं। सही जा रही, थोड़ी सी गलत हो हमें। गई। हम बिजनेस हैं तो इसका मतलब है वो ओनर है जो दीवार के पीछे से हमें देख रहा है, क्योंकि हम तो खुद बिजनेस हैं। और वो क्या है? आप सही सही। हमटी डमटी थोड़ी है, पैकमैन थोड़ी है। ही इज वरीड, ही इज वरीड बिकॉज ही हैज इन्वेस्टेड द अमाउंट in the business in ourselves। हमें पैसे दिए उसने। Now he is looking that what we are going to do with his investment, and when we will return his investment back to him along with profit and loss। तो कारोबार का मालिक कारोबार में पैसे लगाता है किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। जी, तो ये तरीका है आपका, ये हमारा बिजनेस है, और बिजनेस हमें देख रहे हैं कि हम कैसे उसके सरमाए के साथ क्या करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बिजनेस एग्जिस्ट्स एज ए यूनिट बाय इटसेल्फ, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर, ओनली ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स रिलेटेड टू द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स। यानी अगर आप बिल्डिंग परचेज करते हो बिजनेस के लिए तो वो आप बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे, लेकिन अगर कारोबार का मालिक जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से लैपटॉप खरीदता है, वो बिजनेस की बुक्स में एक्सपेंस में नहीं आएगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। तो आप लिख सकती हो, अमाउंट विथड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। आप लिख सकती हो, अमाउंट विथड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। अमाउंट विथड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस
for his personal use is called drawings. Okay. एंटिटी कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कहता है कि बिजनेस अलग है, कारोबार का मालिक अलग है, और अकाउंटिंग में हम कौन है? हम बिजनेस है, नॉट द ओनर. So we are business, not the owner, and we have to, बिजनेस ने एक ना एक दिन कारोबार के मालिक को ये पैसा वापस भी करना होता है, और अगर वो जाती इस्तेमाल के लिए कुछ खर्चा करेगा तो बिजनेस उसके कैपिटल के पैसों में से वो माइनस कर देगा पैसे, उसे बिजनेस का एक्सपेंस हम ट्रीट नहीं करेंगे. तो ये हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का. उसके बाद आपका आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. जी समझ आ गई आपको अमन? जी सर. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम एक साल के बाद, normally we used to prepare our financial statements at the end of the year after 12-month period, and that includes two accounting statements, income statement and balance sheet. Income statement is prepared to find the profit and loss of the business, in which we compare the expenses with the income of the same period on matching principle to find profit and loss of the business. कि आपको एक साल में कारोबार को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है. और बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो हम बनाते हैं, it shows that how many assets and liabilities we have at a particular date. It shows that how many assets and liabilities we have at a particular date. ठीक है? It shows the financial position of the business. तो वो बताती है कि बैलेंस शीट में पर्टिकुलर डेट पे कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं. ये आपको बताती है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. लाइफ ऑफ बिजनेस डिवाइडेड इनटू मेनी इक्वल पार्ट्स एंड फिक्स्ड पीरियड्स. फॉर एग्जांपल 1 ईयर, 1 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 12 महीने का भी हो सकता है. ये 12-month पीरियड. एंड 12-month पीरियड can be normal financial year, which is from 1st January to 31st December, and it can be abnormal financial year also, which start from 1st April and end at 31st March, or which may start from 1st September and ends at 31st August. ये भी फाइनेंशियल ईयर ही कहलाता है. और साल के एंड में हम क्या बनाते हैं? दो चीजें क्या बनाते हैं हम? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट. इनकम स्टेटमेंट में हम एक साल के एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हैं एक साल की आमदनी से, ताकि हमें पता चले हमें फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है. तो इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, एंड बैलेंस शीट shows the financial position of the business. कारोबार की माली हालत क्या है? It shows how many assets and liabilities we have at a particular date. जी, यहाँ तो कोई मसला है तो बताएं. नो सर. बस फिलहाल अभी तक हम यहीं तक रखते हैं इसको. हम आपने घर में जो मैंने पेज दिया वो आपने करके रखना है. और दूसरा, बुक के लिए आपने जो है वो कोशिश करें कि एक वीक के अंदर अंदर कोई आना चक्कर लगे तो बुक ले लें. और अब हमारी क्लास थर्सडे को होगी 3 o'clock. टाइम तो पता है ना आपको? जी सर. लेकिन मैं आपको, अब तो मेरा नंबर है ना, मैं आपको मैसेज कर दिया करूंगा पहले ही. ओके सर, ठीक है. 3 बजे क्लास होगी हमारी थर्सडे को 3 o'clock, और फिर फ्राइडे और सैटरडे को हम क्लास करेंगे. एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, प्लीज यू कैन गो अहेड. एनी प्रॉब्लम? नो. Okay, then take good care of yourself and your family. Have a nice day. See you on Thursday. ठीक है? ओके. WhatsApp पे मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकती हो. WhatsApp पे आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, ठीक है. कुछ चीज समझ ना आए तो आप पूछ सकती हो मुझसे. फिर इंशाल्लाह इससे आगे हम डिस्कस करेंगे. ओके, ओके. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.